Welcome back to the next episode or next video, we can say. Here in this video, we'll be continuing the process that we are doing for the past 2 days. So, the focus has been that every day we take 5 questions and we do three things. Basic first would be the comprehensive analysis of the PYQ starting with 2026, which is considered as one of the most difficult papers. Next thing would be, in this we'll be focusing upon solving it first. After solving it, we'll have basic learning from them and research from the options. Like, we'll understand the options, we'll see what the option means, and while solving the particular question, we'll be focusing upon approach. The approach would include first our knowledge, second it would be the logic, and the third it would be the aptitude that we have. So this would be the approach that we'll be following. So let's start with the first question that we have. Yes, let's start with the first question. So the first question is about, let's read. It is ancient history, as we can see. In the Pleistocene period, either Yamuna once flowed into Indus, or Satluj flowed into Yamuna, and one of the major tributaries either had shifted from Ganga to Indus or vice versa. There is some assertion. They are saying that this might have happened. So they have given us some data. In this, let's see what could be the basis of it. That I'm talking about Pleistocene period, as we can say this period is before the Rig Vedic period that we had. So this Nadi Sutka of the Vedic period might have mentioned, but this entire analogy, we cannot say that it would be based upon this. So by that logic, because knowledge wise we cannot reduce this by knowledge, so we would have to focus upon using our aptitude. Next is exploration of the Satluj and Yamuna by Robert Bruce Foote. See, Robert Bruce Foote, he could be an archaeologist, right? There's a possibility that he can be archaeologist, and this could be a relation. But here it talks about it's a very factual thing. So I'm not so sure whether we are able to connect to it or not. Next, I'm not so sure about this one. Next is the presence of the same species of dolphin in both Indus and Ganga river system. This is factually correct. We know about that. This is factually correct because we study this in environment, and even in the previous PYQs they have asked about Ganga river dolphins and how they are related to Indus dolphins. So that is there. So third one is right. And if we look at the options, because I think here option help, because I'm not so sure about this also not 100% sure, but we know Pleistocene period is not related to Rig Veda. So by that logic, we see that only one option has D, and by that we have answer D. Okay. Next is about Buddhism. As we can say that, what does an empty seat represent in early Buddhist iconography? So एन एम्प्टी सीट की बात कर रहा है. दे हैव आस्क्ड दिस, तो बहुत अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, बट दे हैव आस्क्ड अबाउट दिस. बुद्धिज्म इज अ वेरी फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी. सो व्हाट वुड बी इट? वी नो दैट दिस इज नॉट फर्स्ट sermon, दिस इज नॉट महापरिनिर्वाणा, it is not about the निक्षा कर्माना, it is the meditation pose that is there. एंड इसमें हम लॉजिक क्या दे सकते हैं, हमें ये भी पता है, थोड़ा नॉलेज आई नो बाद में भी देखा जाएगा, बट ये वाला बात जो है इट इज पार्ट ऑफ स्टार्टिंग. सो इट सेज दैट in Buddhism they are focusing in depth about what are the terminologies पे बड़ा फोकस है कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं. राइट नाउ अगेन एशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं. एशियंट हिस्ट्री के बारे में जब देखा जाए, दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एशियन एंड मॉडर्न नेम्स और रिवर्स आर करेक्टली मैच. ओके, हमें देखो इसमें से चारों में से असिकनी झेलम नहीं होता, झेलम हाइडस्पस होता है, बिकॉज हम अलेक्जेंडर की बात करते हैं. व्हेन अलेक्जेंडर कम्स टू इंडिया, देयर इज अ बैटल ऑफ हाइडस्पस दैट हैपेंस. So this cannot be true. By that, if we eliminate this, we will be able to get to, we have these options that says and also with that we are able to eliminate the first one also. So these two are remaining. I do not know.
whether these two are correct or not, because knowledge wise also this not sure about Parushini और यायावती ब्यास बोलते हैं नहीं बोलते नहीं पता है, तो वी कैन नॉट बी सो श्योर. सो ये क्वेश्चन बड़ा डाइसी है. until unless वी हैव द नॉलेज, एप्टीट्यूड यहाँ काम नहीं करता है, लॉजिक यहाँ काम नहीं करता है, मतलब एज पर द नॉलेज दैट आई हैव एट दिस स्टेज काम नहीं करता है. सो दिस कैन नॉट बी सॉल्व बाय दिस. द आंसर दैट इज गिवन, अगर हम नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर जो दे रखा है वो सी दे रखा है. तो मतलब कि परुशिनी को रवि आजकल, परुशिनी पहले बोला जाता है. दैट इज इट. नेक्स्ट, अमरावती स्तूपा के बारे में पूछा गया है एंड उसके रिलीफ स्कल्पचर्स इज करेक्ट और नॉट. देखो, पहली बात उसकी ज्योग्राफी के बारे में पूछा गया है. इट वाज लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. ये फैक्चुअली भी करेक्ट है. उससे हम लोग ये ऑप्शन तो कट कर सकते हैं. In India, it was next only to Sanchi Stupa in size. This actually is not correct because size wise ये बहुत बड़ा कंसिडर किया जाता है एंड ओनली यहाँ पे आ गया फैक्चुअली पूछा गया. तो नॉलेज वाइज भी मुझे पता है कि दिस इज रॉन्ग. Then Amravati School of Sculpture made a lasting impact on the latest South Indian sculptures and its products were carried to Sri Lanka and Southeast Asia. This is right. This is absolutely right. ये एक hard to prove, how to disprove sentence भी है. So by that logic we will know that A, B is the right answer in this because ये factually wrong है. ये purely knowledge based question है. हमें ये इतना आफ्टर रीडिंग अबाउट आर्ट एंड कल्चर एंड एशियन हिस्ट्री हमें ये पता चल जाता है अमरावती स्तूपा कहाँ पे है. वी स्टडी अबाउट देम इवन दो वी डू नॉट नो स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट दैट, बट वी नो कि अमरावती स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है. हमें ये पता है कि देयर इज अ जनरल रूल कि यूजुअली इन हिस्ट्री इफ इट इज़ हार्ड टू डिस्प्रूव देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कुड बी ट्रू. एंड कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट लाइक अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर का इफेक्ट हमें देखा जाएगा साउथ में, बिकॉज वो साउथ में एक तो प्रेजेंट ही है, उसके स्कल्पचर्स में थोड़ा सा भी इफेक्ट आ गया तो वी कैन नॉट डिनाई इट. नेक्स्ट, which of the following pairs of kings and his dynasty in the early Tamil are not correct? नॉलेज बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है. इफ समबडी नोज इट्स अ डिफरेंट थिंग, आई डू नॉट नो. सो नॉलेज बेस पे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, बट एंड बाय दैट लॉजिक बट हम ये एक चीज़ देख सकते हैं कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड हैव लेफ्ट दिस इन द एग्जाम, दैट्स ट्रू. एंड उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इसका अगर आंसर देखा जाए 50 वाले का, तो इसका जो आंसर है वो हमारा बनता है बी. इसका ये सिर्फ गलत है. चलो ठीक है, दिस वॉज फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स फोकस अपॉन व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दीज. लर्निंग और रिसर्च के ऊपर फोकस करते हैं. फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन आता है जिसमें वो असर्शन की बात करता है, वो बताता है कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन देम. लेकिन अगर हम देखें जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंटेम्प्रेरी रिवर्स की बात करता है, ये जो नादी सुत्का ऑफ ऋग्वेदा होता है, इट डज नॉट टॉक अबाउट यमुना एंड यमुना स्पेसिफिकली यमुना, जमुना और सरस्वती और सतलुज की बात करता है. इंडस के बारे में इतनी बात नहीं करता. सो दैट्स वन पॉइंट दैट वी नीड टू नो. नेक्स्ट थिंग इज दैट जो रॉबर्ट ब्रूस फुटे हैं, रॉबर्ट फुट और रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं वो एक्चुअली में एक जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट है जो जाने जाते हैं आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री के लिए ऑफ साउथ इंडिया, नॉट ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड और नॉर्थ इंडिया. सो एंड ये चीज़ सेम डॉल्फिन पाई जाती है अबाउट दिस पॉइंट. इट इज़ ट्रू, इट इज़ फैक्चुअली राइट एंड ये सपोर्ट भी करता है. ये गंगा ब्रह्मपुत्र के लिए भी जाता है, यमुना में भी जाता है और इंडस की भी अपनी खुद की एक सब स्पीशीज मानी जाती है. नेक्स्ट हमारा आता है कि जो एम्प्टी चेयर है, एम्प्टी सीट ऑफ बुद्धा है, ये सिंपली हमें पता है. इसकी और ऑप्शंस अगर हम ध्यान से देखें, बुद्धिस्ट के फर्स्ट सरमन को जो फर्स्ट सरमन दिया था उसे बोला था धर्म चक्रा. इसको क्या बोला था? इसको बोला गया था धर्म चक्रा, इसे धर्म चक्रा बोला गया था. और महापरिनिर्वाणा को इसको एक्चुअली में ये निभाना को या निर्भाना को इसको डेथ बोला जाता है. ये इसका स्तूपा जो होता है उसके लिए, जैसे वो रिलिक्स की बात करता है ना कि दे आर स्तूपा आर द प्लेस वेयर रिलिक्स ऑफ बुद्धा आर केप्ट, सिमिलर टू दैट. देन नेक्स्ट आता है
अपना ग्रेट डिपार्चर, यहाँ पे इसका मतलब होता है ग्रेट डिपार्चर, ये हॉर्स से भी इसको बोला जाता है। लोटस हम जान सकते हैं, लोटस बर्थ के लिए बोला जाता है, एलिफेंट भी बोला जाता है इन सम प्लेसेस। एंड दिस वाज अबाउट इट। नेक्स्ट अबाउट द rivers that is there, which of the following pairs of ancient and modern names of rivers are correct? एक्चुअली में वितासा जो होती है उसको चेनाब भी बोला जाता है, एंड अशिकनी को चेनाब नहीं, अशिकनी को चेनाब ही बोला जाता है। सॉरी, वितास्ता को झेलम बोला जाता है और अशिकनी को चेनाब बोला जाता है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। एंड जो हमारी विपासा है उसको, विपासा को हम क्या बोलते हैं, इधर विपासा ये आता है, विपासा को हम व्यास बोलते हैं। और जो परुषिनी है, परुषिनी को रवि बोलते हैं। सतलुज को जान सकते हैं, दे कैन आस्क अबाउट अनदर वन, दैट इज सतलुज को जिसे शत्रुद्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सतलुज, इफ दे आस्क इन द फ्यूचर। सो दैट इज़ देयर। सो नेम ट्रैप इन्होंने पहले भी पूछा गया, बट दिस इज़ बिग डेप्थ जो इस बार पूछा गया है, तो ये इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और नेक्स्ट आता है कि हिस्टोरिकली अमरावती स्तूपा जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एशियंट इंडिया का स्तूपा माना जाता है, एज आई सेड, एंड ये कंपेरेटिवली सांची स्तूपा से भी ज़्यादा बड़ा माना जाता है। सो बाय दैट लॉजिक वी कैन से। एंड इसमें हम नेक्स्ट टू ओनली जो है, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रहे थे, नेक्स्ट टू ओनली इज वन पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं वो ट्रैप की तरह यूज़ करा जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, ये जो, सॉरी फॉर दी मिस प्रोनाउंसिएशन, डू नॉट वांट टू क्रिएट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती होगी तो माफी। ये सेन गुत्तावन चेरा जो है वो सही है। ये एक्चुअली में ये हीरा ऑफ सिलापट्टिक्रम, इसमें संगमेज में बोला जाता है। इसमें सिलापट्टिक्रम, वी नो दैट इन लिटरेचर वी स्टडी अबाउट सिलापट्टिक्रम। नेक्स्ट वन ये गलत है, द यूडियनजेरल ये जो है ये एक्चुअली में चेरा किंग के लिए यूज़ करा जाता है, और ये जो नेडू नेरेजेलियन जो है वो पांड्या के लिए ही यूज़ करा जाता है। इसमें हमें ये नए पॉइंट्स हैं इसकी, हम जब भी हम लोग कभी भी whenever we are studying about the names और टर्मिनोलॉजीज और द टाइटल्स दैट आर गिवन, उसको और डेप्थ में थोड़ा साउथ इंडिया का देखना पड़ेगा हम लोगों को। सो ये तो है, उसके साथ साथ वी हैव अदर्स ऑल्सो, जो जैसे कि चेरास के लिए, चोलास के लिए और पांड्यास के लिए, विच ऑल पॉइंट्स वी यूज़, लाइक बो एंड एरो, उसके फिश हो गया, चेरास के लिए हम लोग फिश की बात कर लेते हैं, एक्सेट्रा लाइक दैट। सो दैट्स ऑल ऑफ रिसर्च फ्रॉम दिस। अब हम बात करते हैं इससे हमारा लर्निंग क्या था। देखो, लर्निंग वुड बी सिमिलर टू व्हाट वी हैड प्रीवियसली। हमें नया पैटर्न यहाँ पे 11th वाले पे दिख रहा है, दिस इज़ न्यू पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है। एशियन हिस्ट्री का डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी देखा और यहाँ पे भी देखा। वी आर एबल टू सी हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो, बट विथ द हेल्प ऑफ एप्टीट्यूड। देखो, एप्टीट्यूड यहाँ काम नहीं किया, फैक्चुअल क्वेश्चन थे पूरे, एप्टीट्यूड यहाँ काम किया, एप्टीट्यूड यहाँ काम किया, और ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, एप्टीट्यूड भी यूज़ करा जाता है, बट वी हैव टू सी वेयर वी कैन यूज़ आर एप्टीट्यूड एंड वेयर वी कैन यूज़ आर knowledge and logic. That's all for this video. Thank you.